Students, welcome back to science class. The main thing that we have to study in chapter 9, wind, storm and cyclone, that what is wind and what is cyclone. We have to go through with the air, wind and the effects of air and two experiments. After it we studied that what is the movement of air, what is the causes of wind movement, and then we know about the thing that how the anemometer works and what is its use. Today we have to be studied the next effect of air, that is the thunderstorm. So many a times rain is associated with lightning. Rain with lightning is called thunderstorm. A storm with thunder and lightning accompanied by heavy rainfalls or hails. What is the reason behind it? How it is produced? Thunderstorm is produced by the dark clouds which form at fairly low altitude in the atmosphere. So we can say thunderstorms develop in hot and humid tropical areas in India very frequently. This is because the heat of tropical area warms up the air and makes it rise up, where humidity provides the water vapor for the formation of clouds and a thunderstorm is formed. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थंडरस्टॉर्म कैसे अकर होता है. इन समर द एयर राइजेस अप अलोंग विद द लॉट ऑफ मॉइस्चर. गर्मियों में क्या होता है, जो गर्म हवा है वो मॉइस्चर के साथ ऊपर की ओर उठती है. बट आफ्टर राइजिंग टू अ सर्टेन हाइट वाटर वेपर्स कूल्स डाउन एंड व्हाट विल हैपन, दे स्टार्ट्स कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स and the swift drifting of water droplets creates the electricity among the clouds. कैसे? The cloud grows upward into the areas where their temperature is close to the freezing point, है ना? Then what will happen? The friction of the fast rising water droplets in the cloud and falling ice particles produce opposite electric charges on them. Result is the top of the cloud become positively charged and the bottom of the cloud become negatively charged. और जब positive और negative दोनों charge attract होते हैं तो क्या होगा? It build up the cloud, a tremendous cloud. And the electric spark is the lightning that is visualized by you and me, है ना? And the spark of lightning heats the nearby air too much. This extremely hot air expands explosively and causing a loud sound. This is called thunder, है ना? When electric charge from the bottom of the electrically charged cloud flow down through the air to the ground, then we can easily see that flash of light that coming towards the earth. Is it clear? So we can say this is the manifest in the form of lightning and sound. Actually this is the thunderstorm, है ना? Or what should be the precautions when we have to be surrounded by an area of a thunderstorm occurring area? Lightning is a gained electric spark. So we should care some points. हमें कभी भी किसी विंडो के पास नहीं होना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन हो. अम्ब्रेला लेकर नहीं निकलना चाहिए. मेटल्स की चीज़ों को खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि क्या है, मेटल चार्जेस होते हैं ना, उनको आसानी से चार्ज मिल जाएगा. अर्थ एक बहुत बड़ा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो जैसे ही आपको मेटल मिलेगा तो आपकी बॉडी से सराउंड हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. कार और बस को सेफ प्लेसेस पर लाइटनिंग के दौरान मेटल बॉडी के अंदर ही आप अपने आप को सेफ पाते हैं. ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा.
किसी पेड़ के नीचे खड़े होने से बेटर है कि आप किसी कार में शेल्टर ले लें। नेक्स्ट आता है बेटा साइक्लोन। फास्ट मूविंग एयर टुवर्ड्स अ सेंटर यूजली विद हैवी रेन इज नोन एज साइक्लोन। तो वी कैन इनडायरेक्टली से दैट अ साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म, है ना। साइक्लोन क्या है? एक बहुत बड़ा रिवॉल्विंग स्टॉर्म है, एक ऐसा तूफान है जो बहुत हाई स्पीड से आता है। साइक्लोन क्या है? A huge moving storm caused by a high speed wind blowing around a central area of very low pressure in the atmosphere। जो सेंट्रल एरिया है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बहुत लो होगा। साइक्लोन जब फॉर्म होता है तो मोस्टली वार्म सी वाटर के आसपास फॉर्म होता है ना। क्यों? और इट इज अबाउट 10 to 15 किलोमीटर हाई, इतना ऊंचा तो होता ही है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज वेरी काम। यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों होगा? सेंटर ऑफ साइक्लोन काम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है वो लो है। सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम उसका आई भी बोलते हैं, EYE। आई ऑफ साइक्लोन कहाँ होता है? इट इज इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो आई ऑफ साइक्लोन वेरी करता है 10 से 30 किलोमीटर के बीच में। आई ऑफ साइक्लोन वो रीजन होता है जो क्लाउड से फ्री होता है। इट हैज ओनली लाइट विंड्स। अराउंड द काम एंड क्लियर आई ऑफ साइक्लोन देयर इज अ क्लाउड रीजन, और उस क्लाउड रीजन का जो मूवमेंट है वो बेटा 150 किलोमीटर इन साइज होगा। देयर आर वेरी हाई स्पीड विंड्स। लगभग हम कह सकते हैं 150 किलोमीटर पर आवर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर के बीच में वो विंड स्पीड्स होगी। When water vapors in the clouds cools down, it release heat. This heat warms the air around the clouds. And what will happen? The warm air rises up, as we know, and creates a low pressure joint. और जो लो प्रेशर जॉइंट क्विकली उसको फॉर्म अप करेगा, वो कूल एयर क्या करेगी? उस सराउंडिंग को भर लेगी, जिसकी वजह से क्रिएट होता है सेंटर विद लो प्रेशर। और क्या होता है बेटा? साइक्लोन एक बवंडर, जिसे हम हिंदी में बवंडर शब्द देखते हैं, एक चक्रवात की तरह, चक्कर की जैसी हवा की सराउंडेड स्टेट को कहते हैं। और वो चक्कर बनता कैसे है? फैक्टर होते हैं जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, ये सब रोटेट करते हैं अर्थ पर, कंट्रीब्यूट करते हैं जब साइक्लोन बनता है। पहली बात तो जैसे ही सूर्य की गर्मी से सी वाटर जो है मॉइस्ट एयर को ऊपर भेज रहा है, तो क्या हो रहा है? एरिया ऑफ लो प्रेशर कॉज कर रहा है कूलिंग एयर को रश करने के लिए, प्रेशराइज कर रहा है कि वो उस जगह को भरे। हाई स्पीड कंडेंसेशन होगा। फिर उसी की वजह से बेटा कांस्टेंट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑफ इट्स एक्सिस एक्सर्ट अ फोर्स। You can see in the picture how it works, and it is rapidly rising in the columns. You can see. And what will happen then? The force exerted by the rotation of the earth makes the high speed wind revolve in the form of spiral moving। जैसे कि आपको गोल गोल चक्कर के रूप में ये चीज दिखाई दे रही है इस तरीके से। And this weather condition consisting of a system of high speed wind, और जो रिवॉल्व करती है सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर, इज द साइक्लोन। साइक्लोन इज कॉल्ड hurricane in the American continent, और साइक्लोन इज ऑल्सो नोन by the name of typhoon in Japan and Philippines। नेक्स्ट जो थिंग हमारे पास आती है बेटा वो है कि क्या डिस्ट्रैक्शन होता है साइक्लोन की वजह से। सीधी बात है, जब इतनी तेज स्पीड से कोई विंड सरमाउंड कर रही है या गुजर रही है किसी जगह से, तो जो आंधी अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगी। सो वी कैन से साइक्लोन्स कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ इन कोस्टल एरियाज इन 3 ways।
पहला कारण बाय प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड, दूसरा कारण बाय लिफ्टिंग द सी वाटर सेवरल मीटर्स हाई, है ना, और तीसरा कारण बाय ब्रिंगिंग टोरेंटल्स रेन्स। दिस इज द रीजन कि साइक्लोन कितना खतरनाक होता है। जब एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड आती है तो वो कैसे डिस्ट्रक्शन करती है। ट्रेमेंडस फोर्स विद हाई स्पीड विंड एकम्पनी करता है साइक्लोन को, दैट कैन टुपोल द ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, उखाड़ देती है ये चीज़ें इतनी हाई स्पीड से। आप खुद ही सोचो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप धक्का लगा रहे हो किसी चीज़ को, उस चीज़ का क्या बनेगा। नेक्स्ट आता है लो प्रेशर। इसकी आई क्या है, आई जो बना होता है, सेंटर बना होता है, वो लो प्रेशर है। 3 से 12 मीटर तक का ये गैप है और इसका हाइट जो है 3 से 12 मीटर तक का होगा। द फास्ट मूविंग फ्लड वाटर ब्रॉट बाय द साइक्लोन डिस्ट्रॉय द रोड, रेलवे ट्रैक and sometimes wash away the vehicles and houses with them. तो prosperity, fertility and life loss। तीसरा, the whole coastline of India is vulnerable to cyclones. This means that the whole coastline of India is exposed to being hit by cyclones. The east coastal India is more vulnerable to the cyclone by cyclonic storm. The west coast of India less vulnerable to the cyclone both terms of intensity and frequency। यानी समुद्र के किनारे जितने भी जगह होंगे वो ज़्यादा साइक्लोन के खतरे से बाहर नहीं आ सकते बजाय उनके जो समुद्र के किनारे नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाएगी ना। नेक्स्ट आता है बेटा कि जब साइक्लोन होगा तो हमें क्या क्या मेज़र करना चाहिए, क्या इफेक्टिव मेजर्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है। पहला तो गवर्नमेंट के सभी ऑर्डर्स को मानना चाहिए क्योंकि वो वेदर फॉरकास्टिंग मेट्रोलॉजिस्ट द्वारा डिक्लेयर होते हैं, तो वी हैव टू बी डू डैट फॉलोइंग। कम से कम वार्निंग अलर्ट जो है 24 आवर्स के अंदर एडवांस करना चाहिए। सैटेलाइट के जरिए, रडार के जरिए अब हम अलर्ट्स दे सकते हैं। गवर्नमेंट व्हीकल्स टू बी केप्ट टू एवैक्यूएट द पीपल, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो रहा कि सेफ्टी मेजर गवर्नमेंट क्या करेगी, अब बात आती है कि हम लोग क्या करेंगे। डू नॉट इग्नोर व्हेन दिस टाइप ऑफ वार्निंग कम्स फ्रॉम द मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट्स। यू हैव टू शिफ्ट with your householding goods and the things that you make survive. Keep ready the phone and emergency services जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सब चीज़ों का नंबर अपने पास रखिए। दूसरा, अगर आप फिर भी ये सब फॉलो नहीं कर पाते और इमरजेंसी में फंस जाते हैं, देन व्हाट यू शुड डू। इफ अ पर्सन लिव्स इन दिस एरिया दैट इज हिट बाय साइक्लोन मोस्टली, तो व्हाट शुड प्रिकॉशंस। डू नॉट ड्रिंक द वाटर ड्यूरिंग दैट डेज बिकॉज कंटामिनेटेड फ्लड वाटर होगा जो आपको बहुत गंदगी देगा, बीमारी देगा। डू नॉट टच वेट इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड इलेक्ट्रिक पावर्स। नेवर गो इनसाइड द डैमेज बिल्डिंग्स और द फ्लोर्स। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन, इट इज टेकन सीरियसली बाय। नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास कि ये डिस्ट्रैक्शन से हम बच सकते हैं या नहीं। तो बेटे, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन प्रोटेक्शन फ्रॉम साइक्लोन्स एंड इट वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट द अप्रोचिंग साइक्लोन इन एडवांस। सीधी बात है, साइक्लोन तो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते, है ना। तो इससे क्या होता है, हम वार्निंग के जरिए, साइक्लोन वॉच अलर्ट्स के जरिए लोगों के लाइफ को कहीं हद तक बचा पाते हैं। यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोन एंड द टोरेंटो। टोरेंटो क्या है? टोरेंटो इज अ वायलेंट स्टॉर्म विद अ कॉलम ऑफ रैपिडली
rotating wind having the appearance of dark funnel shaped cloud reaches from the sky to the ground. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. आई एम सेइंग स्काई टू द ग्राउंड. और इसका जो स्पीड है वो साइक्लोन के स्पीड से भी 50 किलोमीटर आगे है. अगर साइक्लोन 150 से 250 किलोमीटर पर आवर के बीच में चल रहा है तो इसका जो स्पीड होगा वो 300 किलोमीटर पर आवर होता है बेटा. तो टोरेंडोज क्या है? टोरेंडोज आर वेरी फास्ट मूविंग डार्क क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल and the speed of violent tornado may be up to 300 kilometer and they are as more destructive than the cyclones. Thank you. Thanks for watching and protect yourself and give the guidelines to the society after it if you are generalize this topic. Thank you very much.